امام بغوی کا قول ہے، فرماتے الاتقا، یہ اتقا کون ہے؟ یعنی ابو بکر صدیق، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور تمام کا اس بات پر اجماع ہے، تمام کا اس بات پر۔ آگے بڑھے نا تو محدث ابن جوزیہ سوائرق المحرقہ، آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ تمام مفسرین اہل سنت کے ہاں یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر ہے۔ آپ کو میں نے اتقا بھی بتا دیا کسے کہتے ہیں، اتقا کون ہے یہ بھی آپ کو بتا دی ہے۔ اب آگے سنیں اتقا کی صفات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی صفت وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اتقا وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا، دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے جسے قرآن نے بیان کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ درجہ بدرجہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا اتقا کسے کہتے ہیں، پھر ہے کون جسے امت میں اتقا کہا گیا ہے، اب اس کی صفات سنیں۔ پہلی صفت ہے اتقا وہ ہے جو مال دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ مال۔ امام الانبیاء جلوہ فراز ہے، معروف حدیث ہے، بچہ بچہ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، فرمایا آج اپنی خواہشات بیان کرو۔ بعض ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور موجود نہیں تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے۔ اب ہر آدمی دل میں خواہش لے کر رکھتا ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کتنی خواہشات لے کر بیٹھے ہیں۔ کسی کی خواہش ہوگی فلاں جگہ میری دکان کر لوں، فلاں جگہ بیٹے کی شادی کر لوں، فلاں جگہ مجھے نوکری مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے۔ کسی کی خواہش ہوگی فلاں جگہ پلاٹ ہے میں مکان بنا لوں، کسی کی خواہش ہوگی اللہ کریم مجھے شہر کرے مدینہ منورہ میں بلا لے۔ خواہشات ہر سینے میں ہے نا۔ اب جتنا انسان کی خواہش پاک اعلیٰ ہوگی اتنا ظرف اعلیٰ ہوگا۔ سارے صحابہ خواہشات بیان کریں۔ فاروق اعظم کی خواہش دنیا کے چپے چپے پر حضور کا دین پہنچاؤں۔ کس نے کوئی خواہش کی، کس نے کوئی خواہش کی۔ یار غار نے سب سے پوچھا ہے، سب نے اپنی اپنی خواہشات بیان کی۔ تو صحابہ نے پوچھا یار غار ہم نے تو اپنی خواہشات بیان کی ہیں، آپ بھی اپنی خواہش بیان کریں۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ اپنی خواہش بیان کریں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ پتہ ہے یار غار نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میری 3 خواہشات ہیں۔ بولتے نہیں کتنی؟ ابھی شاہ جی قبلہ بھی بیان کر رہے تھے، کتنی خواہشات ہیں؟ 3۔ پہلی خواہش النظر علی وجہ رسول اللہ، آنکھیں ابو بکر کی ہوں چہرہ میرے رسول کا ہو۔ آنکھ ابو بکر کی ہو چہرہ رسول کا ہو، جہاں بھی نگاہ اٹھاؤ حضور کا چہرہ دیکھو۔ اس پر میں نے 4 مصرے بھی لکھے تھے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ ہے اردو ادب سمجھنا ذرا مشکل ہے، آج کل دور میں وہ معیار نہیں نہ رہا، توجہ کا طالب ہوں۔ میں نے کہا جس نے صبح و شام صرف رسول کو دیکھا، جس نے صبح و شام صرف رسول کو دیکھا، خدا نے اس کی وفائیں قبول کی ہیں، اور زمانے بھر کے وفا شیاروں کو بتا گیا صدیق میری آنکھیں فقط رسول کی ہیں۔ یہ یار غار کی خواہش بڑی شدید تھی، پر آپ جانتے ہیں شروع اسلام کا دور ہے، مکی دور ہے، مشکل حالات ہیں۔ صبح و شام مشرکین کی سازشیں، شرارتیں، کبھی دار ارقم میں، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کوئی ماحول ہے، کبھی حضور کی حفاظت، کبھی دین کی ترویج، کبھی کچھ۔ یار غار کو وقت نہیں ملتا تھا اور خواہش بڑی شدید تھی۔ اس خواہش کا نتیجہ یہ ملا، اللہ نے فرمایا ابو بکر تیرے دل میں میرے محبوب کی زیارت کی خواہش بڑی ہے، ایک وقت آئے گا ساری دنیا سے ہٹا کر 3 دن 3 راتیں غار ثور کی تنہائیوں میں میرے محبوب کا چہرہ گود میں رکھ کے رج رج کے دیدار کرنا، جی بھر کے دیدار کرنا۔ ہر کوئی اپنے انداز میں شعر پڑھتا ہے، میں سمجھتا ہوں سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے یہ شعر لکھا ہے، یار غار کے لیے لکھا ہے، اے تن میرا چشمہ ہوئے، اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویکھ نہ رجاں، لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجاں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کسے وال پجاں، مرشدہ دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں۔ میں ابو بکر غار ثور کی تنہائیوں میں 3 دن 3 راتیں رج رج کے میرے محبوب کا دیدار کرنا، جی بھر کے میرے۔ اور یہ بات کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی حوالہ نہ پوچھے، میرا ذوق محبت ہے، مانے تو ٹھیک ہے ورنہ کون سا فرض ہے میری بات ماننا۔ میں کہتا ہوں یہ اسی خواہش کا نتیجہ ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، یہ اسی خواہش کا نتیجہ ہے 14 صدیوں سے اور پھر قیامت تک۔ ابو بکر مزار میں بھی لیٹے ہیں تو چہرہ حضور کی طرف کر کے لیٹے ہوئے، سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چہرہ میت کا قبلے کی طرف کرتے ہیں نا، یار غار کا قبلہ تو حضور کا وجود ہے۔
काबा तो आता है ना कई सौ किलोमीटर के बाद, तो साथ जो किबला है वो हजूर का वजूद है। यार गार आज भी मजार में भी चेहरा हजूर की तरफ ही करके लेटे हो। पहली ख्वाहिश कि आंखें मेरी हों और चेहरा हजूर का हो। दूसरी ख्वाहिश वनफाकुम माली अला रसूलिल्लाह, एक ख्वाहिश थी कि यकून अपनती तहत रसूलिल्लाह, मेरी बेटी हजूर की खादिमा बने। दूसरी ख्वाहिश थी आंखें मेरी हों चेहरा हजूर का हो। तीसरी ख्वाहिश माल मेरा हो खिदमत हजूर की हो। माल मेरा हो खिदमत, सारे बोले खिदमत, माल मेरा हो खिदमत हजूर की हो। फिर इस अंदाज से वो मैंने वही बयान कर रहा था, अतका की निशानी ये है माल दिल खोल के खर्च करते हैं, बखील नहीं होता, माल दिल खोल के खर्च करते हैं। और फिर मजा तो तब है ना साईं खिदमत कबूल फरमा ले, साईं खिदमत कबूल फरमा ले। मेरे आका करीम ने फरमाया मा नफानी मालुम कत्तो, मा नफानी मालो अभी बकर, मुझे किसी के माल ने वो नफा नहीं दिया जो अबू बकर के माल ने दिया है। किसी के माल ने वो नफा नहीं दिया जो अबू बकर के माल ने दिया है। अच्छा तवज्जो का तालिब, जब हजूर ये फरमा रहे, हदीस के अल्फाज हैं फबका अबा बकर, यार गार दाढ़े मार के रो रहे हैं, यार गार दाढ़े मार के रो रहे हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं कौन हूं, हल अना व माल इल्ला लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं भी आपका हूं, मेरा माल भी आपका है। मैं किसका हूं, मैं भी तो आप ही का हूं, जब मैं आपका हूं तो फिर मेरा माल भी आपका है। तो अल्लाह फरमाता है कि अतका की पहली निशानी ये है वो माल दिल खोल के खर्च करते हैं। दूसरी निशानी अल्लाह फरमाता है, कुरान मजीद है, सूरह लैल पढ़ लें, आखिरी सिपारा है, सूरह लैल की आखिरी 4 आयतें हैं, 17, 18, 19, 20, 21 आखिरी 4-5 आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अतका की निशानी ये है कि उस पर किसी का एहसान नहीं होता, उसका औरों पर एहसान होता है। ये मेरे पास वक्त होता मैं 1 घंटा इसी की तशरीह करता। उस पर किसी का एहसान नहीं, उसका औरों पर एहसान होता है। अबू बकर वो हैं जिन पर सिर्फ हजूर का एहसान है और किसी का एहसान नहीं। औरों पर यार गार के एहसानात हैं, अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं। और इस पर मैं आपकी थोड़ी नहीं बड़ी तवज्जो का तालिब हूं। मेरे आका करीम ने फरमाया दुनिया में जिसने मुझसे मेरे साथ नेकी की, जिसने मुझ पर एहसान किया, एहसान का माना नेकी है। अच्छा मैं एहसान का लफ्ज बोलूं तो ये ना समझे इससे मुराद वो है जो ताकतवर कमजोर पर करता है, जो गनी फकीर पर करता है। यहां एहसान का माना खिदमत। एहसान का माना क्या है भाई, मेरे मुर्शिद मुझ पर को नेकी करेंगे तो वो उनका एहसान है, मैं उनकी को खिदमत करूंगा तो वो खिदमत है, एहसान नहीं। एहसान का माना बदल जाता है जब शख्सियत बदले। यहां एहसान का माना नेकी नहीं, वो नहीं जो ताकतवर कमजोर पर करता है, गनी फकीर पर करता है। यह एहसान का माना है जो गुलाम आका की खिदमत करता है, जो उम्मती रसूल की खिदमत करता है। मेरे आका ने फरमाया मुझ पर दुनिया में जिसने एहसान किया है मैंने सबके बदले दे दिए, मोहम्मद पर किसी का एहसान नहीं। एक आयशा का बाप अबू बकर ऐसा है, इसके एहसानात का बदला मैं नहीं दूंगा, क़यामत को मेरा रब ही अता फरमाएगा। जिसके एहसानात का बदला मैं नहीं दूंगा, कौन अता फरमाएगा? मेरा। सारे बोले मेरा। फरमाया एक अबू बकर ऐसा है जिसके एहसानात का बदला मैं नहीं दूंगा, क़यामत को मेरा रब देगा। और वो एहसानात क्या हैं? इस पर भी मुफस्सिरीन ने लिखा है इस एहसान से मुराद ये है यारे गार अपने सिलसिले के खादिमों की सिफारिश करेंगे। यारे गार अपने जो सिलसिले के खादिम है ना, मुरीदीन है, उनकी शफात करेंगे। और इस पर मेरे पास वो खिताबत नहीं, बस 2 बातें मैंने और अर्ज करनी और गुफ्तगू समेटनी है। मेरे पास यकीन जानिए वो खिताबत नहीं, वरना इन लफ्ज़ों की तासीर आपके दिलों तक पहुंचा सकता। और यकीन जानिए डूब के मरने का मकाम है उनके लिए जो आज लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, मिंबर लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सहाबे कराम और बिलखसूस यार गार की बेदबी करते हैं। बाबा जी का वो याद है ना, दुर दुर याद है ना? मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे अकीदे पढ़ने वाले, नकीबी महफिल। हर कोई ऐसा नकीब नहीं होता आजकल हर दौर में। आप जानते हैं जेलम से फ़ख्र जेलम बिलाल कादरी साहब सफ़र करके आ रहे थे तो मुझे उन्होंने अचानक कहा जिस पर कुछ मिसरे कहे तो वहीं हो गए, वहीं हो गए। मैं क्या चंगे पले सुन्नी सो सीधी राह तू ले गए हो।
समझ आएगी मैं की कह रहा हूं? चंगे भले सुन्नी सो सीधी राह तो लै गए हो, आला हजरत को छड़ के ते पुठे राही पै गए हो। बुग़्ज़े सहाबा विच पै के ते सब दी नजरां तो लै गए हो और दुर दुर कुते हो मालकां नूं ही पै गए हो। बाबा जी का एक कौल है ना, और यकीन करिए उनकी बड़ी तकरीरें, बड़ी तबलीगें, बड़े उन्होंने प्रोग्राम करते, मैं नाम नहीं लेता, पिंडी भरा हो वैसों से, बड़े उन्होंने प्रोग्राम किए। मेरे बाबा जी का ये एक जुमला भी मार के रख दिया है, मत्ती मार के रख दी है। चंगे भले सुन्नी सो सीधी राह तो लै गए हो, आला हजरत को छड़ के ते पुठे राही पै गए हो, और बुग़्ज़े सहाबा विच पै के ते सब नजरां तो लै गए हो, दुर दुर कुते हो मालकां नूं पै गए। शाह जी की भला एक जुमला कह दूं, जसारत है। मैंने किसी मुफक्कर का एक कौल पढ़ा था, यकीन जानिए है वो बड़ा मज़ा से भरा हुआ, पर अगर आप गौर करें तो इबरत बड़ी है। एक मुफक्कर ने लिखा था, अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता, गौर करनी है, अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम पर ही भौंकना शुरू कर दे तो समझ लो उन्हों टूड़ा कोई और पा रहे हैं। अगर लोग सहाबा को भौंकने हैं तो टूड़ा ईरान से आ रहा है। मैं कह रहा सी, अगर कोई सहाबा को भौंके ना तो टूड़ा ईरान से आ रहा है। टूड़ा समझते हैं ना, टुकड़ा। उस मुफक्कर ने लिखा था, अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता मुड़ के तुम्हें भौंकना शुरू कर देना समझ ले टूड़ा कोई और पा रहे हैं। मेरी मिल्लत के बाशऊर मुसलमानों, अब उन लफ्जों का दर्द नहीं मेरे पास है, फरमाने रसूल, इतना ही सोच के सुन लीजिएगा, ये उस जबान से अल्फाज हैं जिनसे मेरी और आपकी निजात वाबस्ता है। किसी ने यारे गार के बारे में ना कमजोर लफ्ज बोल दिए, हल्के लफ्ज जो उनके शायाने शान नहीं थे। किसी ने यारे गार के बारे में कमजोर लफ्ज बोले हैं, इमामुल अंबिया ने फरमाया मिंबर बिछाया जाए, हदीस के लफ्जों का मैं जिम्मेदार हूं, मिंबर बिछाया जाए। ये मिंबर बिछाया जाना इस बात की दलील है, दो चार सहाबा नहीं मजमाए कसीर था, दो चार में बंदा खड़े होके बात कर लेते हैं, 8 10 20 30 बंदे होना बंदा खलो के गल कर लेंगे। ये मिंबर बिछाया जाना इस बात की दलील है, अंबोहे कसीर था, बड़ा मजमा था, सारे सहाबा जमा है, इमामुल अंबिया मिंबर पर खड़े हुए, दुनिया का बड़े से बड़ा मनकबत खाना सिद्दीक़ अकबर यारे गार की मनकबत पढ़ेगा, किसी का तसव्वुर, किसी का तखय्युल, किसी का ख्याल पड़ेगा। आज वो जबान यारे गार की मनकबत पढ़ रही है, जब कलाम करे अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। जिस जबान पर रब्बे रहमान बोलता है, जिस जबान से कुरान जारी हुआ, जो माबते वही है, जिससे हदायत बांटी गई है, वो जबान यारे गार की मनकबत बयान कर रही है। मेरे आका मिंबर पर खड़े हुए लफ्ज नहीं सुनने, दर्द महसूस करने। मेरे रसूल का दर्द क्या था? इमामुल अंबिया मिंबर पर जलवा फराज है, फरमाया मैंने सुने लोग मेरे यारे गार के बारे में कमजोर बातें कर रहे हैं, लोग मेरे अबू बकर के बारे में कमजोर बातें कर रहे हैं। फरमाया जानते हो अबू बकर कौन है? फरमाया अबू बकर मेरे दुख के वक्त का साथी है, ये मेरे गमों का साथी है, ये मेरी तन्हाइयों का साथी है, ये मेरे गमों का साथी है, ये मेरे दुखों का साथी है। मियां साहब ने क्या खूब कहा था, असला ना जन्ने की करिए नस्ला तीक नहीं भुल दे।